Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and students and teachers. How are you all? Today we are going to start our poem of class 5 New Oxford Modern English, and the title of this poem is The Skylark. And what is the meaning of skylark? Skylark means चकोर. ठीक है, उर्दू में हम इसको कहते हैं चकोर. These are the words to know. Hang between the two. Hang between the two. The skylark seems to be hanging between the sky and earth. Hang between the two means one thing is upward and one thing is downward and one thing is hanging between the two. So in this poem it is in the context that the skylark was hanging between the sky and the earth. So what is the meaning of hanging between the two? यानी दो चीज़ों के दरमियान में लटकना. In gay accord. What is the meaning of gay accord? As you can see here, in happy harmony with. In gay accord यानी कि मसरूर, खुश, हद से ज़्यादा खुश, और accord यानी harmony यानी कि एक हम आहंगी के साथ. ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हम आहंगी. ठीक है, gay accord. What is the meaning of gay accord? खुश हम आहंगी यानी किसी चीज़ के साथ आप बड़ी खुशी के साथ जो है वो उसके साथ साथ आप चल रहे हैं. ठीक है. ऑन द विंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑन द विंग? इन फ्लाइट यानी कि उड़ते हुए. ठीक है, ऑन द विंग उड़ते हुए यानी कि आप उड़ रहे हैं जब, तो उसको हम कहते हैं ऑन द विंग, उड़ते हुए, इन फ्लाइट. Skylark, as I have already told you the meaning of skylark, its meaning is chakor, a songbird. What is its meaning? A songbird यानी कि एक गीत गाने वाला परिंदा, चहचहाने वाला परिंदा. Soared. What is the meaning of soared? Circled and wheeled about. Circled and wheeled about यानी कि गोल गोल घूमकर ऊपर उठना. ठीक है, soared का मतलब गोल चक्कर लगाकर, गोल गोल चक्कर लगाकर ऊपर को उठना. ठीक है, यानी कि इस तरह कौन करता है? हम इंसान तो नहीं कर सकते ना ऐसे, ये परिंदे करते हैं ऐसे. ठीक है. स्पेक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक? डॉट. इट इज़ फार अवे एंड स्मॉल यानी कि स्पेक का मतलब होता है कि एक नुक्ता. यानी जैसे ये आसमान है ना, तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ जो हो, वैसे वो यानी कि जिंदा चीज़ है और जानदार चीज़ है. जैसे कोई प्लेन है, एरोप्लेन है. ठीक है, जब वो नज़दीक होता है तो वो आपको बड़ा नज़र आता है. ठीक है, जब वो दूर चला जाता है तो वो आपको एक नुक्ते की तरह नज़र आना शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्पेक. स्पेक का क्या मतलब है? नुक्ता यानी कि धब्बा यानी कि ज़र्रा, यानी जो एक चीज़ जो बहुत दूर चली गई और हमें छोटी नज़र आ रही है. ठीक है, स्पेक का मतलब है नुक्ता. So these were the words to know, and now we are going to start the reading and translation. Be with me. The earth was green, the sky was blue. I saw and heard one sunny morn a skylark hang between the two, a singing speck above the corn. A stage below in gay accord, white butterflies danced on the wing, and still the singing skylark soared, and silent sang and soared to sing. The cornfield stretched a tender green to right and left beside my walks. I knew he had a nest unseen somewhere among the million stalks. And as I paused to hear his song while swift the sunny moments slid, perhaps his mate sat listening long and listened longer than I did. Christiana Rossetti. This poem is written by Christiana Rossetti, and Christiana Rossetti is the poetess of this poem. पोइट होता है शायर. ठीक है, और जो फीमेल पोइट होती है उसको हम पोइटेस कहते हैं. सो क्रिस्टियाना Rossetti is the poetess of this poem. So this was the reading. Now I am going to tell you the Urdu translation of this poem so that you may understand that what is the meaning of what the poetess is going to, what the poetess is trying to tell us. The earth was green, ज़मीन हरे रंग की थी. The sky was blue, और आसमान नीले रंग का था. I saw and heard one sunny morn. मैंने देखा और सुना
आई सॉ मैंने देखा और सुना, वन सनी मॉर्न एक चमकदार या रोशन सुबह को। मॉर्न जो है यहाँ पर मॉर्निंग को उन्होंने मॉर्न करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे उन्होंने यूज़ की है मॉर्न, MORN मॉर्न। ING अगर लगा देंगे हम आगे तो ये मॉर्निंग हो जाएगा, मॉर्निंग मीन्स सुबह। अ स्काईलार्क हैंग बिटवीन द टू, एक चकोर दोनों के बीच मुअल्लक। हैंग का क्या मतलब है? मुअल्लक या लटक रहे होना, ठीक है, यानी कि एक चकोर दोनों के बीच मुअल्लक। किन दोनों के बीच? ये जो ग्रीन अर्थ थी और ये जो ब्लू स्काई था, इन दोनों के दरमियान में एक स्काईलार्क को उसने देखा कि वो मुअल्लक है, यानी कि उड़ रही है। यानी कि ये देखें, एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, दिस इज द ब्लू स्काई एंड दिस इज द ग्रीन अर्थ and this skylark is hanging between the two, means this skylark is hanging between the sky and the earth. And in fact this skylark is not hanging between the sky and the earth, this skylark is flying between the earth and the sky, यानी कि वो उड़ रही है स्काईलार्क जो है आसमान और ज़मीन के दरमियान में। और शायरा ने इसको एक तशबीह दी है कि वो लटक रही है जैसे, ठीक है। अ सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, मकई के ऊपर एक मकई। कॉर्न का क्या मतलब है? मकई का खेत, यानी कि एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर दैट दिस इज द कॉर्न फील्ड। ये कॉर्न फील्ड है और इसमें आप ये सारे मकई के जो है वो देख सकते हैं पौधे, ठीक है। अ सिंगिंग स्पेक, एक गाता हुआ नुक्ता। सिंगिंग स्पेक एक गाता हुआ नुक्ता, यानी कि उसे वो दूर से नज़र आ रही थी चकोर, और दूर से उसको एक नुक्ते की तरह वो चकोर जो है वो लग रही थी। और लेकिन वो चकोर नुक्ते की तरह नज़र आते हुए भी उसकी जो आवाज़ थी, उसका गाना था, वो सुन सकती थी, ठीक है। अबव द कॉर्न, मकई के खेत के ऊपर। यानी कि इसमें इस पूरे स्टेंजा में पोइटस ने हमें ये कहा है कि वन सनी मॉर्निंग, उसने क्या देखा? उसने देखा कि ग्रीन कलर की अर्थ है और ब्लू स्काई है, और इन दोनों के दरमियान में उसने एक उड़ता हुआ और गाता हुआ जो है वो एक नुक्ता देखा, जो कि असल में एक स्काईलार्क थी और वो गा रही थी मकई के खेत के ऊपर। नेक्स्ट स्टेंजा इज अ स्टेज बिलो इन गे अकॉर्ड, यानी कि एक दर्जा नीचे। स्टेज यानी कि एक दर्जा नीचे, यानी कि स्काईलार्क से थोड़ा सा नीचे, उससे एक पॉइंट नीचे। इन गे अकॉर्ड, मसरूर हम आहंगी के साथ, यानी कि मसरूर यानी कि बहुत खुशी के साथ, और उसके मुताबिक उसके बिल्कुल हम आहंग होकर क्या था? वाइट बटरफ्लाइज, सफ़ेद तितलियाँ, डांस्ड ऑन द विंग, तितलियाँ, सफ़ेद तितलियाँ उड़ते हुए नाची, ठीक है। यानी कि स्काईलार्क जो है वो हवा में उड़ रही थी और वो गा रही थी, और उससे बिल्कुल नीचे जो है उसके साथ साथ खुशी के साथ हम आहंगी के साथ कौन उड़ रहा था और डांस कर रहा था? वाइट बटरफ्लाइज, ठीक है। अ स्टेज बिलो, एक दर्जा नीचे, इन गे अकॉर्ड, बहुत खुशी के साथ खुश हम आहंगी के साथ, वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड, सफ़ेद तितलियाँ नाच रही थी, ऑन द विंग, अपने परों के साथ, एंड स्टिल द सिंगिंग स्काईलार्क सोर्ड, और तब भी गाता हुआ चकोर ऊपर उठता गया। सोर्ड का मतलब यानी कि अपनी लय में, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता यूं गोल गोल चक्कर लगाकर ऊपर को उठना, ठीक है। जो यानी कि आपने अक्सर देखा होगा बर्ड्स जो हैं जब वो फ्लाई करते हैं तो वो अपनी फ्लाइट के दौरान इस तरह करते हैं, ठीक है। एंड स्टिल, और अभी भी, द सिंगिंग स्काईलार्क, गाता हुआ चकोर, सोर्ड ऊपर उठता गया, एंड साइलेंट सैंक, और फिर खामोशी से नीचे को डूबता गया, एंड सोर्ड टू सिंग, और फिर से ऊपर उठकर गाने लग गया, और खामोश होके उतरा, यानी कि सैंक का क्या मतलब है? यानी कि नीचे को आया, ठीक है। यूं यूं जैसे यूं नीचे को आया, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये नीचे को आ रहा है जब, ठीक है, इसको उसने सैंक कहा है। एंड साइलेंट सैंक, और खामोशी से नीचे को उतरा, एंड सॉर्ड, और फिर से ऊपर उठता गया, टू सिंग, गाने के लिए। इस सेकेंड स्टेंजा में पोइटस ने ये कहा है, द स्काईलार्क वॉज सिंगिंग एंड वन स्टेज बिलो, वन पॉइंट बिलो, one level below, there were white butterflies who were dancing with very happy accord with the skylark, means वो भी उसका साथ दे रही थी उसके गाने में, ठीक है। यानी कि स्काईलार्क जो है वो गा रहा था और जो बटरफ्लाइज थी वो उसके गाने के साथ साथ जो है वो डांस कर रही थी, ठीक है।
और जो स्काईलार्क था वो कभी ऊपर उठता था, ऊपर उठ के वो गाना गाता था, फिर वो खामोशी से नीचे को आता था और फिर वो ऊपर उठ के गाना गाने लग जाता था। ठीक है, ये उसने पोइटस ने जो है वो नोट किया कि ये बर्ड जो है वो गा रहा है और बटरफ्लाइज उसके साथ डांस कर रही हैं, तो उनका पूरा एक उसने सीन बताया यहाँ पर। ठीक है, द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, मकई का खेत हल्के सब्ज रंग में फैला हुआ था। टेंडर का क्या मतलब है, हल्का या नर्म। ठीक है, कॉर्नफील्ड मकई का खेत, स्ट्रेच्ड फैला हुआ था यानी कि पूरा वो फैला हुआ था। ठीक है, द कॉर्नफील्ड स्ट्रेच्ड अ टेंडर ग्रीन, मकई का खेत हल्के सब्ज रंग में फैला हुआ था। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, मेरी पगडंडी के दाएं और बाएं तरफ। वॉक्स का क्या मतलब है, रास्ता या पगडंडी, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग चलते हैं। टू राइट एंड लेफ्ट, मेरे दाएं और बाएं। बिसाइड माई वॉक्स, मेरे रास्ते के दोनों तरफ। आई न्यू ही हैड अ नेस्ट अनसीन, मैं जानती थी कि उसका एक ना नजर आने वाला घोंसला है। समवेयर अमंग द मिलियन स्टॉक्स, लाखों डंडियों के बीच किसी जगह। स्टॉक्स का क्या मतलब होता है, ये जो दरख्तों के तने होते हैं या पौधों की जो डंडियां होती हैं, ठीक है, उनके दरमियान। मिलियन यानी लाखों, स्टॉक्स दरख्तों के तनों के दरमियान उसका एक घोंसला था जो कि नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, एंड एज आई पॉज टू हियर हिज सॉन्ग, और जैसे ही मैंने वक्फा किया या मैं रुकी उसका गाना सुनने के लिए। वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लेड, जबकि तेज रोशन लम्हे गुजरते गए। वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट्स स्लेड, स्विफ्ट मतलब तेजी से। ठीक है, द सनी मोमेंट्स रोशन लम्हे, स्लिड यानी कि गुजर गए या फिसल गए। स्लाइड से निकला है ये स्लिड यानी कि फिसल गए। परहैप्स हिज मेट सैट लिसनिंग लॉन्ग, शायद उसकी साथी देर तक बैठी सुनती रही। परहैप्स शायद या गालबन, हिज मेट उसकी साथी, सैट बैठी हुई थी, लिसनिंग लॉन्ग देर से उसका गाना सुन रही थी, एंड लिसन लॉन्गर देन आई डिड और मुझसे ज़्यादा देर तक सुनती रही। So this was the reading and translation of this wonderful poem and very interesting poem, and the Skylark, and we have done its वर्ड्स मीनिंग्स एंड रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। आप लोगों ने भी अपने बच्चों से इसी तरह रीडिंग और ट्रांसलेशन सुननी है, और ये वर्ड्स मीनिंग्स आपने उनको उनकी नोटबुक्स में करवाने हैं, और आफ्टर दैट उनसे आपने ये याद भी करवाने हैं और सुनने भी हैं। और हम इसका जो है वो क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं। वेयर वॉज द स्काईलार्क, स्काईलार्क कहाँ पे थी। द स्काईलार्क वॉज फ्लाइंग इन द एयर, द स्काईलार्क वॉज हैंगिंग बिटवीन द स्काई एंड द अर्थ। हु इज लिसनिंग टू द बर्ड्स सॉन्ग, who is listening to the bird's song. And here we have to read about the poet also, Christiana Rossetti, 1830 till 1894, यानी 1830 में उसकी वलादत हुई थी और 1894 में उसकी वफ़ात हुई थी। was born in London, लंदन में पैदा हुई थी। she began writing poetry when she was अ टीनेजर, जब वो यानी कि कम सिन थी और कम सिनी में ही उसने जो है वो नज़में लिखना शुरू कर दी थी, शायरी लिखना शुरू कर दी थी। हर पॉइंट सोन बिकेम वेरी पॉपुलर, उसकी नज़में जल्द ही बहुत मशहूर हो गई। इन दिस पोइम, इस नज़म में, शी डिस्क्राइब्स द सॉन्ग एंड फ्लाइट ऑफ अ स्काईलार्क ऑन अ ब्राइट मॉर्निंग, इस नज़म में वो एक रोशन सुबह को एक चकोर के गीत और उसकी परवाज़ का समा बयान करती हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स हम इसके जो है वो कर लेते हैं। हु इज़ लिसनिंग टू द बर्ड्स सॉन्ग, हु वॉज लिसनिंग टू द बर्ड सॉन्ग, द पोइटस is listening to the bird song. When does the skylark sing and when is it silent? The skylark sang when it soared above the air and it was silent when it sank down. यानी कि जब वो नीचे को आती थी, नीचे को आता था, तो तब स्काईलार्क जो है वो चुप हो जाता था, साइलेंट हो जाता था, और जब वो ऊपर को उड़ता था तो वो गाना अपना स्टार्ट कर देता था। Which words and phrases in the poem tell us what time of year it is? Make a list.
Following words and phrases tell us that it is spring. Green earth, blue sky, sunny morning, tender green. All these things tell us that it was the spring season, because in spring season new fields and new plants and trees and flowers and fruits grow. So these were the question answers and some question answers. ये 4 question answers आपने अपनी copies में करने हैं, and these words meanings, and do the reading and translation. In the next lecture we will do its remaining exercise. Till then, take care. Allah Hafiz.